Good morning students. I am Anjali Singh, Assistant Professor of Pharmacology in RKDIT College of Pharmacy, Ghaziabad. So in this video lecture, we are going to talk about parasympathomimetics or cholinergic drugs. So these drugs are based upon the acetylcholine, okay, and this is a part of pharmacology first, BP 404T, unit number 3. So let's start the lecture. So before talking about the parasympathomimetics और cholinergic drugs, we have to know about what is acetylcholine. Acetylcholine होता क्या है जिसके ऊपर बेस्ड हम ड्रग्स पढ़ने वाले हैं. So as I have earlier mentioned in previous lecture that acetylcholine is a major neurotransmitter of the पैरासिम्पैथोमिमेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. एसिटाइलकोलिन जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज एसिटाइलकोलिन, व्हाट आर द ड्रग्स विच आर बेस्ड अपॉन द एसिटाइलकोलिन, व्हाट आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स and the classification of the cholinergic drugs and anticholinesterase drugs. Okay, so let's start the lecture. So at first let's discuss about what is cholinergic transmission. जो acetylcholine होता है वो हमारी बॉडी में कैसे synthesize होता है, what are the steps of synthesis and release of acetylcholine. So acetylcholine is a major neurohumoral transmitter at autonomic, somatic as well as the central sites. जो acetylcholine होता है वो ऑटोनॉमिक, सोमैटिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तीनों में ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ पे हम इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज द स्टेप फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन जो होता है वो कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग में सिंथेसाइज होता है. इट इज सिंथेसाइज्ड इन कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग. एंड व्हाट आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन. Okay. So at first ATP will combine with acetate and coenzyme A and it is converted into acetyl coenzyme A. Then one choline molecule is added in acetyl coenzyme A and in the presence of choline acetyl transferase enzyme it is converted into acetylcholine and coenzyme A. So this is a step for the synthesis of acetylcholine in our body. सो दिस इज़ अ कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग. ये एक कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग है जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज हो रहा है. सो एज यू कैन सी कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, दिस विल कन्वर्टेड इनटू एसिटाइलकोलिन. ये आपका एसिटाइलकोलिन में कन्वर्ट हो रहा है. एंड आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन इन कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग एसिटाइलकोलिन इज स्टोर्ड इन एन सिनेप्टिक वेसिकल. ये एक वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाता है. ठीक है, वेसिकल के अंदर जो स्टोर होता है आपका एसिटाइलकोलिन. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द सिनेप्टिक वेसिकल इज इफेक्टेड बाय अनदर कैरियर विच इज ब्लॉक्ड बाय द वेसामिकॉल. जो आपका एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज होने के बाद सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर स्टोर होता है, इसको हम इसके स्टोरेज को इनहिबिट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल नोन एज वेसामिकॉल. After storage, acetylcholine, whenever a action potential or nerve impulse reaches to this cholinergic nerve ending, जब भी इस nerve ending पे कोई भी action potential पहुँचेगा, यानी कि ये nerve ending excite होगी, इसमें कोई भी action potential पहुँचेगा, तो यहाँ पे जो भी vesicle है वो rupture हो जाएगा जिसके अंदर acetylcholine stored है. And acetylcholine will release by the fusion of vesicular membrane, the membrane of this vesicle, and the axonal membrane, which is the membrane of this nerve axon fiber. Okay. And the acetylcholine will release from this vesicle to the synaptic junction. जो acetylcholine है वो synaptic junction में release हो जाएगा. So the release of this neurotransmitter will regulate by the botulinum toxin. Botulinum toxin will inhibit the release of acetylcholine from the cholinergic nerve ending. After release of acetylcholine, there are some receptors जिनसे कि acetylcholine bind करता है. For example, we have muscarinic receptor and nicotinic receptor. ठीक है, रिलीज के बाद एसिटाइलकोलिन जो होता है वो अपने मस्कराइनिक या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द साइट कि उस साइट पे इसका कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है. आफ्टर दैट डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन. आफ्टर बाइंडिंग टू दिस रिसेप्टर द एक्स्ट्रा और एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल विल डिग्रेड विद द हेल्प ऑफ कोलिनेस्टरेज एंजाइम. एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन दिस जंक्शन. जो यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कोलिनेस्टरेज एंजाइम कहते हैं, जो कि एसिटाइलकोलिन को यहीं पे डिग्रेड कर देता है. नेक्स्ट, रिसाइक्लिंग ऑफ कोलिन. जो आपका डिग्रेडेशन होता है एसिटाइलकोलिन का वो किस में होता है, एसीटेट प्लस कोलिन में.
और जो आपका कोलिन मॉलिक्यूल होता है उसका वापस से रीअपटेक कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर. सो दीज आर द स्टेप ऑफ सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन. ओके, एसिटाइल कोलिन इज synthesized and stored in synaptic vesicles. Whenever a action potential is reaches to this cholinergic nerve ending, the vesicular membrane will rupture with the axonal membrane and acetylcholine will release in the synaptic cleft. After the release, it will bind to its receptor. Maybe it is nicotinic receptor or it may be muscarinic receptor. After that, the acetylcholine will degrade with the help of cholinesterase enzyme and the choline molecule will reuptake with the sodium choline co-transmitter. So this is the overall cycle of for the acetylcholine. Next, what is choline esterase? As I have mentioned that acetylcholine will degrade in the synaptic cleft with the help of enzyme we are known as choline esterase enzyme. So immediately after release, acetylcholine is hydrolyzed by the enzyme. This is known as choline esterase enzyme. We have two types of choline esterase enzyme, a specific acetylcholine esterase enzyme which is also known as true choline esterase enzyme. जो पहला choline esterase enzyme होता है उसको हम बोलते हैं acetyl choline esterase enzyme, जो कि आपकी फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग है, यहाँ से आपका एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज होगा और यहाँ पे आएगा इस पर्टिकुलर साइट पे जो पहला एंजाइम है हमारा उसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रू कोलिन एस्टरेज एंजाइम. इसी के साथ में हमारे पास दूसरे टाइप के भी एसिटाइल कोलिन एस्टरेज या फिर कोलिन एस्टरेज एंजाइम होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक कोलिन एस्टरेज एंजाइम और वी कैन से ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम या फिर हम इनको बोलते हैं स्यूडो कोलिन एस्टरेज एंजाइम. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोलिन एस्टरेज. फर्स्ट इज द एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम एंड सेकेंड वन इज द ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज और स्यूडो कोलिन एस्टरेज एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन. नाउ these are the types of receptor जिनसे कि हमारा जो एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल है वो रिलीज होने के बाद बाइंड करेगा. वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोलिन रिसेप्टर. कोलिन रिसेप्टर मीन्स एसिटाइल कोलिन के बाइंड होने के लिए हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कोलिन रिसेप्टर्स बोलते हैं. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोलिन रिसेप्टर. फर्स्ट वन इज द मस्करैनिक रिसेप्टर. द नेचर ऑफ द मस्करैनिक रिसेप्टर इज GPCR और G प्रोटीन कपल रिसेप्टर. मस्करैनिक रिसेप्टर्स आर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर. सो द स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा हेलिकल इनका स्ट्रक्चर होता है. G प्रोटीन होती है इनमें और अल्फा, बीटा और गामा सब यूनिट होती हैं. जी प्रोटीन्स जो होती है हमारे पास डिफरेंट टाइप की जी प्रोटीन्स होती है. फॉर एग्जांपल GQ प्रोटीन, GS प्रोटीन और GI प्रोटीन. अकॉर्डिंग टू दीज जी प्रोटीन्स हम सेकेंडरी मैसेंजर पाथवे को फॉलो करते हैं जो ऑलरेडी आप लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं, ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलिन रिसेप्टर इज नोन एज द ligand gated ion channel receptor or nicotinic receptor. So these are the subtypes of receptor. Muscarinic receptor is further subdivided into three major categories: M1 receptor, M2 receptor and M3 receptor. And nicotinic receptor is further divided into two major categories: NN receptor and NM receptor. The nature of M1, M2 and M3 is GPCR and the nature of NN and NM is ion channel receptor. These are the ion channel receptor. The protein which are associated with M1 receptor is GQ protein. The protein which are associated with M2 receptor is GI protein and the protein which is associated with M3 receptor is GQ protein. And the ion channel which are associated with NN receptor and NM receptor are sodium potassium ion channel. Okay. So the primary location of these receptors, the primary location of M1 receptor is autonomic ganglia. आपको ये primary locations पता होनी चाहिए for the multiple choice of questions, okay? और अगर आपको इन receptor के site of action और इसका location पता है, then इसका nature पता है, तो आप drug का mechanism of action जो है वो easily लिख सकते हैं. Next, the location of M2 receptor is on heart and cholinergic nerve ending. Why cholinergic nerve ending? Because M2 receptor will act as an autoreceptor. So what is autoreceptor? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नर्व एंडिंग जहाँ से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है. कुछ रिसेप्टर जो होते हैं वो प्री सिनेप्टिकली ही नर्व एंडिंग पे प्रेजेंट होते हैं जो अपने ही न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं. यानी कि अगर इस नर्व एंडिंग से एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है तो इसी नर्व एंडिंग पे M2 रिसेप्टर भी प्रेजेंट होगा जो एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इनहिबिट करेगा जब उसका सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज हो चुका होगा. सो नेक्स्ट द लोकेशन ऑफ M3 रिसेप्टर इज विसरल स्मूथ मसल्स.
द लोकेशन ऑफ NN रिसेप्टर, या आपको ध्यान देना होगा, द लोकेशन ऑफ NN रिसेप्टर इज ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एंड द लोकेशन ऑफ NM रिसेप्टर इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जो NM रिसेप्टर होता है इसका जो लोकेशन होता है वो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब कि जहाँ पे एक नर्व फाइबर आपका एक मसल फाइबर के साथ में अटैच होता है, उस जंक्शन को हम बोलते हैं मसल एंड प्लेट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Okay, so these are the diagrams of G protein couple receptor and ligand gated ion channel receptor. So these are the types of GPCR according to the protein. Okay, so if the protein is GQ, as I have earlier mentioned कि if the protein is GQ, the pathway जो आपका follow किया जाएगा वो होगा आपका IP3 DAG pathway. The secondary pathway is IP3 DAG pathway. And if the protein is GS, जो आपका पाथवे फॉलो होगा वो होगा आपका एडिनाइल साइक्लेज पाथवे। तो इन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू हमारा जो एसिटाइल कोलिन है वो 2 टाइप के पाथवे फॉलो कर सकता है। इफ द प्रोटीन इज GS, द पाथवे इज एडिनाइल साइक्लेज पाथवे, एंड इफ द प्रोटीन इज GQ, द पाथवे इज IP3 DAG पाथवे। ओके, now the nicotinic receptor which is an ligand gated ion channel receptor, as you can see the structure is rosette pentameric type of structure। ये आपका rosette pentameric type of structure होता है क्योंकि इसके पास 5 सब यूनिट होती है, 1 2 3 4 5, so this is a pentameric structure। okay, now in detail of these receptor M1 M2 and M3 receptor, प्रोटीन्स हमने ऑलरेडी इनकी मेंशन करी है कि इनमें हमारी कौन कौन सी प्रोटीन होती है। इन M1 रिसेप्टर वी हैव GQ प्रोटीन, इन M2 रिसेप्टर वी हैव GI प्रोटीन, इन M3 रिसेप्टर वी हैव फॉर द GQ प्रोटीन। ओके, नाउ द लोकेशन ऑफ दिस रिसेप्टर, M1 रिसेप्टर का लोकेशन होता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन आपकी GQ है यानी कि IP3 DAG पाथवे फॉलो होगा, काम एक्साइटेटरी होगा, तो इफेक्ट मिल रहा है हमें डीपोलराइजेशन। इन M2 रिसेप्टर द प्रोटीन इज GI, तो यानी कि जो भी फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा वो आपका इनहिबिटरी होगा। एडिनाइल साइक्लेज पाथवे को हम लोग इनहिबिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, इनहिबिशन ऑफ साइक्लिक AMP। ओके, सो द प्रोडक्ट इज इनहिबिटरी, सो द प्रोडक्ट इज हाइपरपोलराइजेशन। आपका जो हार्ट है, हार्ट रेट कम हो जाएगा। okay, the effect is inhibitory. Now in M3 receptor the protein is GQ, so the function is excitatory. So as you can see, according to the location of this receptor, if the receptor is present on the smooth muscles, there is a contraction. If the receptor is present on iris, there is a constriction of pupil. So जहाँ भी ये receptor present होगा वहाँ पे ये constriction करवाएगा। So M1 receptor will coordinate इन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया जहाँ पे ये करवाएगा डीपोलराइजेशन, M2 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट है जहाँ पे ये करवाएगा हाइपरपोलराइजेशन, M3 रिसेप्टर हमारी स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है जहाँ पे ये करवाएगा आपका कंस्ट्रिक्शन। ओके, नेचर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। GPCR इनका नेचर है प्रोटीन के अकॉर्डिंग, GQ प्रोटीन है, पाथवे IP3 DAG, GI प्रोटीन है, इनहिबिशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज पाथवे, GQ प्रोटीन है, तो देन नेक्स्ट सेम चीज आ जाएगी आपकी IP3 DAG पाथवे। ठीक है, नाउ NM रिसेप्टर एंड NN रिसेप्टर, तो ये आपको मेमोराइज कैसे करना है। M फॉर मस्कुलर जंक्शन, तो द लोकेशन ऑफ NM रिसेप्टर इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब, फॉर एग्जांपल दिस इज अ नर्व फाइबर और ये आपकी कोई मसल है, तो जहाँ पे हमारा कोई नर्व फाइबर हमारी मसल फाइबर के साथ में आके लिंक्ड होता है, इस स्पेस को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है वो है हमारा NM रिसेप्टर, एंड द लोकेशन ऑफ NN रिसेप्टर इज ऑन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। स्ट्रक्चर इन दोनों का सेम है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है जिसमें कि बीचों बीच में हमारे जो आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन चैनल, यानी कि इन रिसेप्टर के बीच में कैटायन चैनल प्रेजेंट होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, रोजेट पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। इस रिसेप्टर के सेंटर में एक आपका कैटायनिक चैनल प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन चैनल। नाउ द ड्रग्स विच आर बेस्ड अपॉन दिस neurotransmitter which is acetylcholine, so these drugs are known as cholinergic drugs. So these drugs are also known as cholinomimetic. mimetic मतलब मिमिक करना, ऐसी ड्रग जो एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को मिमिक करती हैं। और पैरासिम्पैथोमिमेटिक, पैरासिम्पैथोमिमेटिक यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेजर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन को मिमिक करने वाली ड्रग ये आएंगी, यानी कि एसिटाइलकोलिन और कोलिनर्जिक ड्रग्स। सो दीज आर द सिनोनिम फॉर द कोलिनर्जिक ड्रग्स। सो दीज आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ एसिटाइलकोलिन, जो एसिटाइलकोलिन की तरह ही इफेक्ट शो करती हैं, आइदर बाय डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद द कोलिनर्जिक रिसेप्टर, या तो ये ड्रग डायरेक्टली कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ में इंटरैक्ट करेंगी, और बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन एट दीज साइट्स, और या फिर क्या करेंगी कि हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके उसको पोटेंशिएट करने का काम करेंगी। सो
In first, next slide, we'll discuss about the cholinergic agonist drug. These drugs will directly bind to the cholinergic receptor. So this is the classification. Cholinergic agonist drug will classify into two major categories. In first categories we have choline esters. In second category we have alkaloid. In choline esters we have four drugs: acetylcholine, methacholine, carbachol and bethanycol. In second category we have muscarine, pilocarpine and aracholine. Now the pharmacological action of these drugs. Okay. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द मस्करैनिक एक्शन, यानी कि अगर आपका जो एसिटाइलकोलिन से रिलेटेड ड्रग है ये हमारी बॉडी में जाने के बाद डायरेक्टली मस्करैनिक रिसेप्टर के साथ में बाइंड करती हैं तो ये हमें कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेंगी. सो फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन हार्ट. सो हार्ट पे प्रेजेंट होता है M2 रिसेप्टर और अगर आपको याद हो प्रोटीन है GI, तो यानी कि ये क्या करेंगी, हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगी. ठीक है, और हार्ट रेट डिक्रीज करने को हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया. सिंपल कि आपके हार्ट पे प्रेजेंट है M2 रिसेप्टर, तो जब भी एसिटाइलकोलिन से रिलेटेड आप कोई ड्रग खाएंगे या आपके हार्ट पे जाके M2 रिसेप्टर पे एक्ट करके GPCR रिसेप्टर पे काम करेंगी, यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर. द प्रोटीन इज GI एंड द इफेक्ट इज इनहिबिटरी. आपका हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन ब्लड वेसल्स. तो आपका जो एसिटाइलकोलिन है, ऑल ब्लड वेसल्स आर डायलेटेड. ठीक है, और इसकी जो ब्लड वेसल्स है, जो मेजर आपका साइट है वो है इसका स्किन, फेस, नेक एंड सलाइवरी ग्लैंड, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं. सो बेसिकली ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्लड वेसल्स. तो जब भी आपकी कोई ड्रग जो कि आपकी कोलिनर्जिक ड्रग है आपकी ब्लड वेसल्स पे पहुँचती है, तो ब्लड वेसल्स पे पहुँचने के बाद ये एक फैक्टर को रिलीज करती हैं, EDRF, एंडोथीलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर, और वी कैन से नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है. तो सीधे सीधे एसिटाइलकोलिन हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है. नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन स्मूथ मसल्स. सो स्मूथ मसल्स इज अ मोस्ट ऑर्गन इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय एसिटाइलकोलिन, बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्मूथ मसल्स पे हमारा प्रेजेंट होता है M3 रिसेप्टर, और M3 रिसेप्टर की जो प्रोटीन है वो है GQ. तो यानी कि पाथवे होगा आपका IP3DAG, और IP3DAG जब पाथवे फॉलो किया जाता है तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सेल के अंदर कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है. और C फॉर कैल्शियम एंड C फॉर कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे भी कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन. सो अगर हम बात करते हैं कि ये हमारी GIT में प्रेजेंट है M3 रिसेप्टर और एसिटाइलकोलिन GIT पे काम कर रहा है, तो ये वहाँ पे जाके क्या करेगा, हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देगा, यानी कि इवेक्यूशन ऑफ बाउल और एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो है वो कॉज करेगा. ठीक है. इसके बाद अगर ये हमारे ब्लैडर में प्रेजेंट है तो ये वहाँ पे क्या करेगा, आपकी जो आपकी डेट्रोसर मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ट्राइगोन को रिलैक्स करेगा और ब्लैडर को खाली कराने का काम करेगा, यानी कि वॉइडनिंग ऑफ ब्लैडर. ठीक है. इसके बाद यह हमारी ब्रोंकियल मसल्स पे प्रेजेंट है, अगर यानी कि हमारे नेक यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे ये हमारी ब्रोंकियल मसल्स को भी कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है और ये अस्थमेटिक अटैक जो होता है वो कॉज कर सकता है. सो दीज आर द मेजर इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स इन आवर बॉडी. इन ऑल टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स एसिटाइलकोलिन विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ M3 receptor. Next effect of acetylcholine is on gland. So the secretion of the parasympathetic innervation gland is increased via M3 receptor and M2 receptor. हमारी बॉडी के जितने भी secretions हैं वो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग्स के थ्रू इंक्रीज हो जाते हैं. मे बी इट इज स्वेटिंग, सलाइवेशन, लैक्रीमेशन, जितने भी बॉडी सिक्रेशंस हैं वो सारे के सारे सिक्रेशन जो हैं वो हमारे इन्हांस हो जाएंगे. नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन आई. सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस. तो as you can see in this diagram, these are the circular muscles which is just around the pupil and these are the radial muscles. For example, this is your pupil, so these are the circular muscles and these are radial muscles. तो अगर आप बोलते हैं कि जो आपकी ड्रग है वो सर्कुलर मसल्स पे काम कर रही है, तो सर्कुलर मसल्स क्या होती है, इनका कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, अंदर की साइड. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पाइप को रैप करके रखते हैं और उस पाइप को दोनों तरफ से खींचते हैं, तो जो पाइप के बीचों बीच का डायमीटर है, जब आप पाइप मोड़ के रख देते हैं और उसको खींचना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाती है. तो यानी ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये अंदर की तरफ श्रिंक होती हैं, जिससे कि हमारे प्यूपिल का साइज कम हो जाता है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस. तो एसिटाइलकोलिन विल कॉज मियोसिस इन आवर आईज. Now the nicotinic action. So nicotinic receptor का primary location है, if we will discuss about the NN receptor, the primary location is on autonomic ganglia, and NM receptor, the primary location is on neuromuscular junction. So in autonomic ganglia both sympathetic and parasympathetic ganglia are stimulated. दोनों ही ganglia जो होंगे वो stimulated हो जाएंगे with the help of acetylcholine. And in acetylcholine on
स्केलेटल मसल जो आपके मसल एंड प्लेट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फॉर एग्जांपल दिस इज योर मसल फाइबर, नर्व फाइबर, एंड दिस इज मसल एंड प्लेट और योर मसल फाइबर. इन योर मसल फाइबर देयर इज NM रिसेप्टर. तो जब भी हम एसिटाइल कोलिन लेते हैं, एसिटाइल कोलिन जो होता है या फिर इससे रिलेटेड ड्रग हमारी मसल एंड प्लेट पे पहुंचने के बाद, NM रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद इस मसल में सोडियम आयन का कंडक्टेंस इंक्रीज कर देती है, जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. ओके. इन CNS एसिटाइल कोलिन इंजेक्टेड IV डज नॉट पेनिट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि माइनर डोज पे जो एसिटाइल कोलिन होता है ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है. अगर हम इसका डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं तो फाइनली ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू डिप्रेशन कॉज करता है. ओके. Now the second category is anticholinesterase. So the drugs which are based upon the anticholinesterase enzyme, these drugs are classified into two categories: reversible types of drug and irreversible type of anticholinesterase drug. In reversible category we have carbamates and acridine, for example physostigmine and tacrine, and in reversible category we have organophosphate and carbamates. In the major drugs is Deflos, and the carbamates we have carborate. Now next discuss about the mechanism of action of anticholinesterase drug. So before discussing the mechanism of action of anticholinesterase drug, first we will discuss about the mechanism of action of cholinesterase enzyme. So this is the structure of cholinesterase enzyme. In cholinesterase enzyme there are two sites. First site is known as the serine site, जहाँ पे हमारा serine amino acid bind होता है. Second site is known as the glutamate site, जहाँ पे हमारा glutamate amino acid bind होता है. Third site is known as the histidine site. Histidine site will potentiate the serine sites. At serine site we have an OH group, and at glutamate site we have a carboxylic group with the negative sign. So this site is known as the anionic site, and this site is known as the esteratic site. Okay. Now whenever a acetylcholine molecule comes close to the acetylcholinesterase enzyme, acetylcholine molecule कैसे इस पे बाइंड होता है, जो आपका एसिटाइल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में क्वार्टिनरी अमोनियम ग्रुप होता है, दिस क्वार्टिनरी अमोनियम ग्रुप विल बाइंड टू दिस anionic site, this CO negative group will bind to this anionic site. So the quaternary ammonium group will bind to this anionic site, and after that at esteratic site the H is transferred to the acetylcholine, and the CH3CO negative will transfer to this esteratic site. So we can say there is a acetylation of this esteratic site. So the end product is acetate and choline. This is choline and this is acetate. So the end product is acetate and choline. So these are the two primary sites of this enzyme. So how anticholinesterase drugs will work? They have to bind to this acetylcholinesterase enzyme and inhibit the binding of acetylcholine with this enzyme. So how these drugs will act? So these are the example. This is a short acting drug and this is a long acting drug. So this is example of edrophonium. Edrophonium कैसे काम करता है? In edrophonium there is a quaternary ammonium group which will bind to this anionic site, and there is a OH group which is bind to this esteratic site. But this bond which will form between this drug and the enzyme is an hydrogen bond which is a weak bond. So हमारी जो anticholinesterase drug होती है वो क्या करती हैं कि अपने जो हमारा cholinesterase एंजाइम है उसके साथ जाके खुद बाइंड हो जाती हैं और उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं जहाँ पे कि एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल को बाइंड होना था. और एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल जब इस एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाता है तो वो डिग्रेड नहीं होता है और हमारी बॉडी में उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है. दिस इज अ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग. ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होती हैं वो यहाँ पे एक फॉस्फेट बॉन्ड बना देती हैं, इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो कि आपके एंजाइम से इजीली डिटैच नहीं होती हैं. इसीलिए जो आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होते हैं. सो बेसिकली जो आपकी एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग होती है उनका सिंपल सा मैकेनिज्म है कि वो हमारे एंजाइम के साथ बाइंड होकर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता है. These are the pharmacological effect or action of the anticholinesterase drug. These effects are same as the cholinergic agonist drug. इनके जो इफेक्ट हैं वो सेम आपकी cholinergic drugs की तरह होंगे. फॉर एग्जाम्पल ब्रेडिकार्डिया, म्योसिस, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ. The uses of these drugs will discuss in next slide. These are the references for this slide. Thank you so much.